This conference will now be recorded. The identification of Office 365 is basically, you can say that to become an expert as a Office 365 engineer, it's our responsibility. We should know about कि how we can manage. Office 365 को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है for better understanding. Means if you want to perform the task with O365, you should know about the different types of dashboard. अलग अलग डैशबोर्ड में कैटेगराइज किया गया है ताकि हम चीजों को आसानी से मैनेज कर सकें. लाइक एज we have a Microsoft 365 admin center, we have a Azure AD, MS 365 admin center, this is the first one. Second है अपने पास Azure AD, and third important point is related to Exchange admin. We have a three different dashboard. These all are kind of dashboard. Okay. Our responsibility to understand each and every dashboard means जो भी according to the content, क्योंकि Microsoft के केस में Microsoft provide us up to 5 different types of certification, जिसमें से MS 900 फंडामेंटल के लिए, MS 100 आपके एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, MS 101 सिक्योरिटी के लिए, एंड MS 500, MS 500 फॉर सिक्योरिटी, एंड आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट के लिए है MS 700. तो टोटल मिला के यहाँ पे अगर हम बात करें तो we have a 5 to 7 different types of certification, और हर एक सर्टिफिकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है. हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं MS 100, विच इज अ वन ऑफ इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशन किसी भी सर्विसेज के लिए, किसी भी Office 365 की ट्रबल शूटिंग के लिए जो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो है MS 100. So in this case, we will discuss each and every point related to the content of Microsoft Blueprint. We'll start from the MS Microsoft 365 Admin Center, then discuss about Azure AD, and after that we'll discuss about the Exchange Admin Center. So MS Admin Center में क्या क्या चीजें हम परफॉर्म करने वाले हैं? In case of MS Microsoft 365 Admin Center, we'll start from the users management. The one of important point, users management, then talk about licensing, and about the concept of multi-factor authentication. We will discuss about bulk user creation, बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है माइक्रोसॉफ्ट सॉरी यूजर्स की प्रॉपर्टीज लाइक एज we have a templates. We will discuss about the concept of other services like as you can say that alias, and about the mailbox capacity. बहुत सारी सर्विसेज हैं जो यूजर्स की प्रॉपर्टीज में मिलेगी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 365 एडमिन सेंटर. Back to the Office 365 account, whenever we log in, it will look like this, or we log in with the help of admin account or root account. So that's why we are able to find admin center. Just need to click on admin center. This is our admin center where we can perform the task related to the users management first. सबसे पहले हम यहाँ पे users management follow करेंगे. So all में जाएंगे and we are able to find Microsoft 365 Admin Center, and under the Admin Center, Home, Users, Teams Group, Roles, Resources, Billing, Support, ये जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, these all are the point of Admin Center Microsoft 365. We have Azure Active Directory Services, and we have option to manage the Exchange Admin Center.
These all are the points that we need to cover in case of our Office 365 MS100 training. ठीक है. Let's start with users. Under the users properties, we are able to find एक्टिव यूजर, कॉन्टैक्ट, गेस्ट यूजर अकाउंट, डिलीटेड यूजर. ये 3 से 4 डिफरेंट ऑप्शन हमें दिखाई पड़ेंगे इन केस ऑफ एक्टिव यूजर. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्टिव यूजर बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप. Although I have already created multiple user accounts, but I'm going to proceed with few new user accounts, so that's why I need to delete it. Okay. This is the user panel where we can create a user to log in and access our mailing services. अगर हमें अपने employees के लिए mail services create करनी है, email ID create करनी है, तो we can proceed with the admin center. Although we have option to create with the help of active directory services as well, but अभी के लिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं how we can manage the users with the help of our admin center, Microsoft admin center. Okay. ये डिलीट पे क्लिक करके डिलीट हो गया ना सर? ये सेलेक्ट करके डिलीट पे Just क्लिक कर दिया आपने जो डिलीट. नंबर ऑफ यूजर्स दैट यू वांट टू डिलीट. ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स आप डिलीट करना चाहते हैं उनको चेक मार्क करो और डिलीट पे क्लिक कर दोगे. इमीडिएटली अच्छा. डिसअपेयर हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, है ना. सो दिस इज द वे टू डिलीट आवर ऑफिस 365 यूजर्स. ओके. ओके. और उनको वापस लाना हो तो सर उन्हीं यूजर को वापस यहाँ पे दिखाना या हो. या बैक टू द डिलीटेड यूजर, बैक टू द डिलीटेड हाँ. यूजर. और यहाँ पे आपके जितने भी डिलीटेड यूजर है ना, जितने भी यूजर्स आपने डिलीट किए, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट एंड उनको रिवर्ट बैक करना है. ओके. ओके. जीसीपी, एडब्ल्यूएस एडमिन, एज्योर, ये सब डिलीटेड यूजर है. कब डिलीट किया उसकी भी इंफॉर्मेशन है. 20th को हमने डिलीट किया, 15th को डिलीट किया, 6th को डिलीट किया, 15th को डिलीट किया. तो अकॉर्डिंग टू द डेट, जैसे हमने केवल 20 की तारीख को 20th को है, ये भी 20th को डिलीट किया. जितने भी आपको लगता है कि रिसेंटली डिलीट हुए ना, उनको चेक मार्क करके आप रिवर्ट बैक करा सकते हैं. ठीक है. ओके. 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 समटाइम इंटरव्यूअर आस्क यू क्वेश्चन कि अगर हम अपने यूजर्स को डिलीट करते हैं, एक्टिव यूजर्स को डिलीट करते हैं, तो कितने दिन तक आप उसको रिवर्ट कर सकते हैं. ठीक है. द सॉफ्ट डिलीशन ड्यूरेशन, बेसिकली he need to know about the soft deleting date or days, you can say that. तो ओके. माइक्रोसॉफ्ट बाय डिफॉल्ट 30 डेज तक के लिए हमें ऑफर करता है कि अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया है यूजर, ठीक है, if you deleted your user by default, so you have rights, you are eligible to revert your data, revert your users up to 30 days. ओके. ओके. 30 दिन के अंदर आप अपने यूजर्स को जो डिलीटेड यूजर है उनको रिवर्ट बैक कर सकते हैं. ठीक है. ओके. ओके. देखेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसमें. सिक्योरिटी के पार्ट में आएगा, नॉट सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन के पार्ट में आएगा कि कैसे आप ट्रबल शूट करते हैं एक रियल इन्वायरमेंट के अंदर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफिस 365 पे इंजीनियर की. तो उन सभी के बारे में बात करेंगे और बहुत आसानी से इसका इंटरव्यू क्रैक करना बहुत आसान है. मीन्स बंदा अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर ले इसमें ना, तो मीन्स उतने क्वेश्चन ही नहीं बन पाते. कितना भी एक्सपर्ट बंदा आपके सामने बैठ जाए, यू आर एबल टू रिप्लाई, बट आपको चीजें थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखनी पड़ेगी खुद से. ठीक है. करेक्ट. तो करेक्ट. अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बेस से चलते हैं. अभी 2-3 क्लासेस, 5 क्लासेस होने के बाद आपको खुद रियलाइज लगेगा कि ऑफिस 365 उतना टफ नहीं है जितना अदर टेक्नोलॉजीज है. बिल्कुल. बिल्कुल. एक्टिव यूजर पे हमने क्लिक किया. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. एक्टिव यूजर, द मीनिंग ऑफ एक्टिव यूजर, द नंबर ऑफ यूजर जिसको आपने क्रिएट किया है, यू हैव ऑलरेडी असाइन द लाइसेंसेस, या जितने एम्प्लॉयज की मेल आईडी है, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको एक्टिव यूजर में दिखाई पड़ जाएगी. For बिल्कुल. example, you are an admin of your organization responsible to manage the Office 365 and mailing services. आप responsible हो organization की mailing services को manage करने के लिए. तो if you want to verify कि कितने बंदे, कितने employee अभी current time पे हमारे पास हैं, so you just need to click on active user. यहाँ पे right side पे आपको list मिल जाएगी कि these all are the users जो अभी activity perform कर रहे हैं. Clear? एक्टिविटी परफॉर्म करें. क्लियर सर. अब नई ज्वाइनिंग होती है, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नई ज्वाइनिंग होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए मेल आईडी डिजाइन करें, उनके लिए लाइसेंस डिजाइन करें, उनके लिए टीम्स को ऑथराइज करें, उनके लिए वन ड्राइव को ऑथराइज करें. वो सभी एक्टिविटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कभी हायरिंग 2 हो रही, कभी 5 हो रही, कभी 10 हो रही है.
एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी नीड टू प्रिपेयर अवर सेल्फ कि हमें किस तरीके से उनको हैंडल करना है, राइट। एंड करेक्ट। बहुत सारी इंटरनल एक्टिविटी होती है, यू नो दैट आप किसी कंपनी में जो ज्वाइन करते हो एज ए एम्प्लॉय, थिंक करो, आप जस्ट थिंक अबाउट एज ए एम्प्लॉय कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग ली। तो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग लेने के बाद 3 से 4 दिन 5 दिन तक आपका आपका इंडेक्शन ही चलता रहता है, राइट। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, पॉलिसीज हो गई इनके बारे में। तो एक्चुअली ये तीन से राइट, राइट। चार दिन के अंदर, है ना, इंडक्शन के पीरियड में क्या होता है कि जो लोकल आईटी है वो क्या करती है, उनको टाइम मिल जाता है कि भाई बंदे को वर्क स्टेशन देना है, बंदे को ऑफिस 365 के थ्रू मेलिंग प्रोवाइड करनी है, उसका टीम्स डिजाइन करना है, उनका वन ड्राइव प्रोवाइड करना है, कितना स्पेस जरूरत पड़ेगी, लाइक दैट। तो यस। आपके पास एचआर का डॉक्यूमेंट आ जाएगा कि ये हमारे पास लिस्ट है जिनकी इस हफ्ते ज्वाइनिंग हुई है, एंड प्लीज आप फ्राइडे तक या सैटरडे तक या थर्सडे तक अकॉर्डिंग टू द वर्किंग डेज आप इनकी मेल आईडी प्रिपेयर करके रखेंगे। क्लियर। यस, यस। क्लियर। और कभी भी लोकल आईटी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता किसी भी न्यू ज्वाइनर से, यू नो वेरी वेल अबाउट। यस, यस, यस। You need to send the entire information to HR department, बाकी उनकी हेडेक है कि वो कब भेजते हैं। Got it what I'm saying? करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, दिस इज द इंटरनल प्रोसेस। और इंटरनल प्रोसेस में जो यूसेज जो टास्क है वो लोकल आईटी का है, मीन्स जो भी बंदा चीजों को हैंडल कर रहा है लोकल आईटी, बाकी वो हैंड ओवर कर देगा एचआर को। एचआर रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रीब्यूट द सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज सर्व करना है। I'm going to create one user, just need to click here, type the name of your user। अभी हम एक यूजर बना रहे हैं विद नेम ऑफ AWS, डिस्प्ले नेम इज आल्सो AWS। और यहाँ पे डोमेन की बात करें, सो वी डोंट हैव आवर ऑन डोमेन, वी आर यूजिंग टीच मी क्लाउड 674.onmicrosoft.com। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ऑन ओके। माइक्रोसॉफ्ट.com से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको मेल आईडी सर्व नहीं करती, यू नो दैट। ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से, राइट, अपने नाम से जो भी कंपनी का नाम है उससे रिलेटेड आपका डोमेन जुड़ा रहेगा। आप HCL में काम करते हैं, IBM में काम करते हैं, डेल में काम करते हैं, तो आपकी जो मेल आईडी रहेगी abc.hcl.com, यस, यस। xyz.hcl.com, लाइक। तो इसके लिए हम्म। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको परचेज करते हैं एंड हाउ वी कैन असाइन टू अवर यूजर्स फॉर द मेलिंग सर्विसेज। तो ये भी अपने करेक्ट। पास पार्ट आए। लेकिन अभी अभी हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं विद ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com। ठीक है, प्रैक्टिस हम इस पे ठीक। भी कर सकते हैं और बाकी अपना वो तो ऑप्शन है ही। इज दैट ओके? ओके सर। We are able to find automatic generate create a password। I don't want to create a automatically password because it will take time and we are in training। तो एक हम अपना खुद का common password cloud at 123 हम इसमें mention कर दे रहे हैं। Required this user to change their password when they first sign in, means जब पहली बार यूजर लॉगिन करे तो इसके पास पॉपअप जनरेट करके आए कि you must need to change their your on password। So basically प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये चेक मार्क करना जरूरी है, बिकॉज सिक्योरिटी के पर्पज से एडमिन रिस्पॉन्सिबल है केवल टेम्परेरी पासवर्ड शेयर करने के लिए। आप सिर्फ टेम्परेरी पासवर्ड शेयर करेंगे, बाकी जो यूजर रहेगा वो अपने हिसाब से पासवर्ड को रीसेट करेगा। इज दैट क्लियर? क्लियर, क्लियर। आई एम नॉट गोइंग टू चेक मार्क हियर क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट। दिस इज द लाइसेंसिंग पैनल। ठीक है, यहाँ पे अपने पास लाइसेंस दिखाई पड़ रहा है। One is enterprise mobility plus security 5 and this is the Office 365 F3 license। ये आपका AD लाइसेंस है और ये आपका Office 365 लाइसेंस है। The usage of Office 365 लाइसेंस जिससे आप ऑफिस से रिलेटेड सर्विसेज को हैंडल करेंगे। ठीक है। इज दैट ओके? ऑफिस रिलेटेड सर्विसेज का मतलब क्या है कि आप मेलिंग सर्विसेज वगैरह जो भी मैनेज करनी है वो आप इसी लाइसेंस के जरिए मैनेज करेंगे। ठीक है। डन। इसमें ये ज्यादा मिला हुआ है, एंटरप्राइज मोबिलिटी सिक्योरिटी 5 250 है। या एक्टिव डायरेक्टरी यूजर है, इसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा।
ओके। इसमें आपको इस लाइसेंस के अंदर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा। प्रोडक्ट इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको आउटलुक नहीं मिलेगा, टीम्स वगैरह नहीं मिलेगा। ये एडी लाइसेंस है। और एडी लाइसेंस का यूसेज क्या रहता है? एडी लाइसेंस रिस्पॉन्सिबल है आपके सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए। ओके। करेक्ट। Okay. So what I'm going to do, I'm just going to assign the license। एक बार बिना लाइसेंस के क्रिएट करते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मींस विद लाइसेंस एंड विदाउट लाइसेंस क्या डिफरेंस होता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू सेलेक्ट एनी लाइसेंस, प्रोसीड विद विदाउट लाइसेंस। विदाउट ओके। लाइसेंस हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, नॉट रिकमेंडेड। माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड नहीं करता, बट कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है मेल असाइन क्रिएट कर देती है बट उनके लाइसेंस नहीं प्रोवाइड करती, तो वी नीड टू प्रोवाइड द लाइसेंस सेपरेटली। नेक्स्ट, and this is the another panel where we can find the roles, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर रोल और प्रोफाइल। अगर आप इसको थोड़ा सा ड्रैग ड्रॉप करोगे ना, it will give us option related to the admin centers। करेक्ट। So in case of admin center, we are able to find n number of roles are available, like as a exchange administrator, global administrator, global reader, help desk service। बहुत सारे यहाँ पे admin role है। So what do you think about the admin role या delegation क्या होता है? डेलीगेशन राइट्स इंक्रीज करना। हम्म। और एडमिन रोल किसी चीज का मतलब हम पर्टिकुलर रोल असाइन कर दे रहे हैं, जैसे कि वो एडमिन का टास्क परफॉर्म करेगा। अ, आपने वो बताया था लास्ट क्लास में भी। जैसे इसके पास ज़्यादा काम आ गया, जैसे लाइसेंस क्रिएट करना, वो पर्टिकुलर यूजर टास्क किसी और को डिवाइड कर देगा वो। तो आधा काम उसके पास चला जाएगा, बट यूजर से रिलेटेड ही काम वो कर पाएगा, अदर वर्क नहीं कर पाएगा। बट हाँ, वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा सर। करेक्ट। इफ यू हैव अ वर्कलोड, आप एक एडमिन है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क, यू डोंट हैव इनफ टाइम, ठीक है। एज ए एडमिन यू डोंट हैव इनफ टाइम, सो उस केस में क्या करना पड़ेगा? तो यू नीड टू हायर सम मोर इंजीनियर्स, फिर मोर इंजीनियर्स, और उनको उनके अकॉर्डिंग राइट्स प्रोवाइड करना। करेक्ट। 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 कि ठीक है, किसी को एक्सचेंज एडमिन बना दिया, किसी को टीम्स एडमिन बना दिया, किसी को यूजर्स एडमिन बना दिया। आप जिस तरीके की परमिशंस यहाँ पे असाइन करेंगे, लाइक किसी को यूजर एडमिन क्रिएट कर दिया, तो इट मीन्स दैट वो बंदा जो नॉर्मल बंदा है वो यूजर से रिलेटेड सारे टास्क कर पाएगा। यूजर क्रिएट करना, यूजर डिलीट करना, यूजर में चेंजेस करना, रीसेट करना पासवर्ड को, ये सभी एक्टिविटी वो हमारे यूजर्स परफॉर्म कर पाएगा। क्लियर? करेक्ट। करेक्ट। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी एडमिन बिकॉज वी विल डिस्कस लेटर। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे यूजर को फिनिश करते हैं। We decided our own password। यहाँ पे हमने अपना खुद का पासवर्ड दिया है, cloud@123। दिस इज द यूजर नेम, फाइनल यूजर नेम, प्राइमरी यूजर नेम, ये हमारे पास आया है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्लोज। AWS के नाम से यूजर क्रिएट किया, वी हैवंट प्रोवाइड एनी लाइसेंस, अनलाइसेंस्ड है। आई एम जस्ट गोइंग करेक्ट। टू ओपन इनकॉग्निटो विजार्ड एंड ओपन portal.office.com। कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे हम यूजर नेम एंड देन प्रोवाइड पासवर्ड। Skip for 15 days। I don't want to configure any kind of MFA, multi-factor authentication, and just try to log in through normal activity, sorry, user ID and password। ओके। वी आर एबल टू लॉग इन, ठीक है। यहाँ पे हम पोर्टल तो लॉग इन कर पा रहे हैं, बट वी आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। अब देखिए, पोर्टल यस। लॉग इन है एंड आई डोंट थिंक वी आर एबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। आप एप्लीकेशन पे भी जाओगे ना, तो यहाँ पे हमें कोई भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज द नहीं है, हाँ। प्रोडक्ट is based on our license। यस। Is that clear? क्लियर। Just like a OTT platform, Netflix पे हम अकाउंट कभी भी बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट यू आर एबल टू सी द कंटेंट। Netflix के कंटेंट, वेब सीरीज या मूवीज आप तभी देख पाएंगे व्हेन यू हैव अ सब्सक्रिप्शन।
अकाउंट तो कोई भी यस। बना सकता है, विद इन मिनट अकाउंट क्रिएट कर सकता है, बट उसके अंदर के प्रोडक्ट के लिए आपको पे करना पड़ेगा, राइट? राइट। I'm going to authorize one license for this particular user. AWS से लॉगिन किया है, ये कॉर्नर पे इसकी डिटेल्स आ जाएगी, AWS @something जो डोमेन नेम से जुड़ा है, एंड व्यू अकाउंट पे जाकर के इस अकाउंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। मीन्स यूजर नेम क्या है, बाकी इंफॉर्मेशन अगर आपने जो सेट कर रखी है वो सारी एट्रीब्यूट्स जिसको करते हैं, इसके अंदर के एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आपको ऑथराइज हो जाएंगे। बट प्रोडक्ट के लिए इट्स मैंडेटरी टू असाइन द लाइसेंस। प्रोडक्ट अगर आपको देखना है, यूज करना है, तो आप अपने इस यूजर के लिए लाइसेंस को असाइन जरूर करेंगे। हाउ वी कैन डू दैट? बैक टू द रूट अकाउंट, सेलेक्ट योर यूजर, जो कि अनलाइसेंस दिखा रहा है अभी। सेलेक्ट योर यूजर, open the properties of our user, and we just need to click on licenses and application। यस। लाइसेंसेस एंड एप्लीकेशन पे जाके चेक मार्क करो आप इसको, ऑफिस 365 F3, ये हमारा फ्री ट्रायल लाइसेंस है। इसके अंदर 27 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। दिस ऑल आर द प्रोडक्ट। इफ यू आर टू यस। कस्टमाइज, आपको लगता है नहीं स्काइप की जरूरत नहीं इस बंदे को, आपको लगता है इसको वेब एक्सेस की जरूरत नहीं, लाइक दैट यू हैव ऑप्शन टू कस्टमाइज इट। आप अपने यस। अकॉर्डिंग यस। यहाँ पे कर सेव इट। वी सक्सेसफुली असाइन द लाइसेंस। पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार। ऑफिस 365 F3 लाइसेंस हमने AWS को असाइन कर दिया। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस, ठीक है। वी जस्ट नीड टू रिफ्रेश द पेज, सम टाइम इट विल टेक टाइम, बट अभी हम रिफ्रेश करके देखते हैं। आप देखिए इमीडिएट आपको प्रोडक्ट मिल गए। आ गई सारी। आउटलुक, टीम्स, वर्ड, एक्सेल, सारे प्रोडक्ट हैं, बट ये मोस्ट कॉमन यूजेबल प्रोडक्ट है। 27 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें से ये तो डेली बेसिस पे है ना, इनके बिना तो काम ही नहीं होगा किसी का। तो करेक्ट। आउटलुक वगैरह तो जिनमें मेलिंग सर्विसेज वगैरह, या टीम्स तो बंदे कोई ना कोई मीटिंग शेड्यूल रहती है, तो टीम्स के ही थ्रू ये सारी चीजें हैंडल करते हैं। आउटलुक सेंड अ मेल, रिसीव अ मेल, लाइक यू आर एबल टू परफॉर्म द टास्क। डन। डन। और वो सर दिस जो इज घूम रहा यूजर। था, आपने खोला था, वो बताया था कि अकाउंट्स का इन्फॉर्मेशन सारा देख सकती है Just मेल need to पे। click on icon view व्यू अकाउंट। account। You just need to authorize it, पासवर्ड देना पड़ेगा। इट विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलो ओपन हो जाए, मैं आपको गाइड करता हूँ कि क्या क्या चीजें आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ इंट्यून को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। इंट्यून से क्या होता है ना, कि बंदे की मॉनिटरिंग हो जाती है, कहाँ से लॉगिन कर रहा यस। है, कब लॉगिन कर रहा है ना, उसके ऊपर पॉलिसी देनी है, क्या देना है, वो सारी चीजें यहाँ से हो जाती है। तो डिटेल्स में, अकाउंट की डिटेल में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस अकाउंट पे इंट्यून की सर्विस लगी है या नहीं लगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, एक पूरा का पूरा विजार्ड प्रोवाइड कर दिया, दैट हेल्प अस टू मैनेज अवर ऑफिस 365 यूजर। ये यस। बाकी के पोर्टल से हटके है। यूजर नेम, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, डिवाइसेस, ऑर्गेनाइजेशन, साइन इन, ऑफिस एप्लीकेशन, देखिए कौन कौन से एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखे हैं इस टूल के जरिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट यू आर यूजिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सी, दिस इज योर सब्सक्रिप्शन डिटेल, ठीक है। यहाँ पे आपके ओके। पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको कौन कौन सी चीजें ऑथराइज की गई हैं और आप क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हो। मीन्स नो नीड टू कोऑर्डिनेट, नो नीड टू कोऑर्डिनेट योर एडमिन। हर एक चीज के लिए एडमिन नहीं है रिस्पॉन्सिबल, हम अपनी तरफ से भी चीजों को देख सकते हैं। अब आपको कौन सा अकाउंट मिल रहा है, ऑफिस का कौन सा अकाउंट आपको मिला है, कौन सा लाइसेंस आप ऑफिस में दिया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। करेक्ट। लाइसेंस टाइप क्या है, स्काइप का एक्सेस है कि नहीं, टीम्स का एक्सेस है कि नहीं, ठीक है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज द यूनिक आइडेंटिटी, ठीक है।
अब ओके। यूनिक आइडेंटिटी क्या करता है, यूनिक आइडेंटिटी क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी आपका जो ऑनर है, ऑनर इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द रूट अकाउंट, आप उसको ये सेंड करेंगे ना यूनिक आइडेंटिटी, तो इसके जरिए वो आपके मैसेज की ट्रेसिंग कर सकता है। ओके। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? आपने मुझे मैसेज यस। भेजा, बोथ आर वर्किंग विद सेम ऑर्गेनाइजेशन, आपने मुझे मैसेज भेजा, मैंने बोला कि मुझे मैसेज रिसीव नहीं हुआ, ठीक है ना? ओके। तो बट आपकी तरफ से सेंट दिखा रहा है, आपकी तरफ से सेंट दिखा रहा है, बट मुझे मेरी साइड पे उसकी डिटेल नहीं आ रही, राइट? मुझे मैसेज नहीं राइट। मिल रहा है। तो मीडिएटर क्या करेगा, रूट अकाउंट क्या करेगा, इसी ऑर्गेनाइजेशन आईडी यूनिक आईडी को आपसे मांगेगा, एंड यू कैन शेयर यूनिक आईडी विद योर रूट अकाउंट। वो पूरी डिटेल निकाल देगा मेल फ्लो के थ्रू कि आपका जब मैसेज है या ईमेल है वो कहाँ पे स्टक हुआ है। इज दैट कहाँ पे क्लियर? स्टक हुआ? क्लियर, क्लियर। तो सर जो मेल क्वारंटीन हो जाती है वो इसी से निकलती है फिर, कोई कहाँ क्वारंटीन हो रही है? नहीं, क्वारंटीन के बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है? क्वारंटीन के बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर आपने दूसरा डोमेन यूज कर लिया, क्वारंटीन कर हम्म, देगा। आपने हम्म, कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी की, आपने कोई सॉफ्टवेयर भेजने की कोशिश की, जो छोटा सा सॉफ्टवेयर था, आपने सोचा मेल के थ्रू भेज देते हैं, ठीक है? हम्म, हम्म, दो चार एमबी, 5 MB, 10 MB का टूल था, आपने सोचा मेल के थ्रू हम्म, भेज देते हैं। तो उस केस में आपकी हम्म, मेल क्वारंटीन हो जाएगी। पहले वो रिव्यू करेगा, चेक करेगा। अगर उसको क्वारंटीन से बाहर निकालने की जरूरत पड़ी तो ठीक है, अदर वहीं से वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा आपकी मेल को। डिलीट कर देगा। बेसिकली क्वारंटीन का यूसेज क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिस्क नहीं चाहते, सिंपल सा। कोई भी यस। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क नहीं चाहती, दैट्स व्हाई दिस शुड यूज द क्वारंटीन ऑप्शन, ओके। ठीक है? जिससे एटलीस्ट हम पहले रिव्यू कर सकें। क्वारंटीन क्या है? जस्ट अ रिव्यू। हम अपने मेल रिव्यू। को रिव्यू करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? करेक्ट? क्लियर, क्लियर। और रिव्यू करने का मतलब है कि जब तक हम अप्रूव नहीं करेंगे तब तक हमारी मेल ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा बात, ठीक है? यस, यस, यस। तो ये पासवर्ड भी दिखा देगा कि क्या रीसेट किया है? पासवर्ड रीसेट? पासवर्ड का भी ऑप्शन आ रहा था ना यहाँ पे, पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड इन द सेंस मतलब वो दिखा देगा कि क्या रीसेट करा था हमने? ना ना ना, पासवर्ड कैन हेल्प अस यहाँ पे। अगर हम पासवर्ड की बात करें, सो इट विल हेल्प अस। अगर आपके सिस्टम पे, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने SSPR एक सर्विस होती है, ठीक है? सेल्फ सर्विस पासवर्ड सेल्फ रीसेट। सर्विस, हाँ, हाँ। अगर वो SSPR एक्टिवेट है बैकएंड से, देन यू कैन डू हम्म, दैट टू अपडेट योर पासवर्ड प्रोटेक्शन। ये आपका तभी आएगा जब आपके सिस्टम पे रूट ने आपको ऑथराइज कर रखा है फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट वी कैन से दैट SSPR एक्टिवेट है, तभी आप पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज। ठीक है? वो SSPR है, अभी पॉइंट में आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ ठीक तक है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अभी तक? आ, अभी तक तो ये अभी आपने कहाँ पे क्लिक किया था, वो ऑप्शन दे रहा था पासवर्ड वाला? वी जस्ट नीड टू ओपन आवर अकाउंट, ठीक है? ये तो आ व्यू गए यहाँ पे। अकाउंट डिटेल। हम्म, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज जहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हम्म, MFA सेट करने के लिए बोल रहा है। आप देखिए यहाँ पे चेंज चेंज पासवर्ड। पासवर्ड। इट विल वर्क, डेफिनेटली इट विल वर्क, लेकिन उसके लिए आपके पास, ये तो रीसेट पासवर्ड है ना, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन नहीं है। ये रीसेट नहीं। पासवर्ड है। आप ओल्ड पासवर्ड देंगे, हम्म, न्यू पासवर्ड जो भी देना है, अनकन्फर्म पासवर्ड। तो यहाँ आने से बेटर है कि आप, ये यूजर अपनी तरफ से रीसेट कर रहा है, राइट? यस, यस। बट कंडीशन क्या है ना, कंडीशन ये है कि बंदे को पासवर्ड पता है अपना। हम्म, अगर पता है तभी वो रीसेट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। थिंक अबाउट, अगर यूजर पासवर्ड ही भूल गया, हम्म, अगर यूजर पासवर्ड भूल गया तो उस केस में वो या तो एडमिन से कोऑर्डिनेट करेगा, या फिर वो अपनी तरफ से क्या कहते हैं, SSPR एक्टिवेट है तो वो अपना MFA वगैरह लगा करके पासवर्ड को रीसेट कर पाएगा। डन? यस, करेक्ट। डन। ठीक है।
तो ये अपने पास एक पासवर्ड की बात हो गई। रीसेट पासवर्ड, नॉट रीसेट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड चेंज यूजिंग पासवर्ड। क्लाइंट, यूजिंग क्लाइंट मशीन, क्योंकि अभी हम लोग क्लाइंट पे हैं। AWS एक तरीके का क्लाइंट है, इसके पास कोई राइट्स नहीं है, इसके पास सिर्फ लाइसेंस के राइट्स है। That's it. करेक्ट करेक्ट। बैक टू द रूट अकाउंट, यूजर्स की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं एंड वी विल फाइंड द लॉट्स ऑफ ऑप्शन एंड दीज ऑप्शंस आर रियली हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट पर्पज। पासवर्ड रीसेट, ब्लॉक साइन इन एंड डिलीट यूजर, ये एडमिन पेज पे हैं आप। पासवर्ड रीसेट, यस यस। अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है फॉरगेटेड माय पासवर्ड, कैन यू प्लीज रीसेट एंड ऑथराइज मी एंड सेंड मी अ टेम्परेरी पासवर्ड, तो यहाँ से हम चेंज कर देंगे। ब्लॉक साइन इन आप कब करेंगे? मैनुअल ब्लॉक साइन इन है, अगर आपको लगता है कोई सस्पिशियस एक्टिविटी फॉलो कर रहा है हमारा यूजर या क्लाइंट, सेम यूजर आपके ऑफिस में अभी बैठा है, लॉगिन कर रखा है, सेम अकाउंट आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये तो मुंबई लोकेशन में भी कोई बंदा लॉगिन कर रहा है, ठीक है। यस। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप तुरंत के तुरंत उस अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे। क्लाइंट आपका आपका कस्ट जो इंजीनियर है वो आपसे कोऑर्डिनेट करेगा थ्रू मेल, या नॉर्मली आके डिस्कस करेगा कि आई एम अनेबल टू एक्सेस द मेल। तब आप उसको डिस्क्राइब करोगे कि हमने ब्लॉक किया है, प्लीज लेट मी नो कि आपने ही मुंबई लोकेशन में किसी को यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करके लॉगिन कराया है, या फिर यू डोंट नो अबाउट कि आपकी मेल आईडी मुंबई लोकेशन में भी लॉगिन हो रही है। गॉट इट? करेक्ट गॉट या इट। तो बंदे ने पासवर्ड दे रखा है किसी को, ठीक है, कि आप भाई वहां से मेल चेक कर ले, ये भी गलत है। मीन्स एक तरीके से अनएथिकल है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मेल आईडी को आप किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, यस अगेंस्ट द यस। पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एडमिन जो है उसके पास पूरे राइट्स है कि वो बिना पूछे उसको ब्लॉक कर दे। नो नीड टू यस कोऑर्डिनेट, डिस्कस बाद में करोगे, पहले एज ए एक्सपर्ट एज ए एडमिन आप उसको ब्लॉक करोगे, बाद में कोई किसी से भी डिस्कस करना पड़े वो कर लेंगे, बट आप इस टाइम पे जेन्युइन है और आप अपना टास्क प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हो, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे इन्वायरमेंट को सिक्योर करना। इज दैट करेक्ट? यस। करेक्ट। व्हेनेवर यू ब्लॉक, हर जगह से आपका यूजर जो है ब्लॉक हो जाएगा, नो वन कैन लॉग इन, डिलीट यूजर, यस। यू नो दैट। अकाउंट की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज योर प्राइमरी मेल आईडी, ठीक है, दिस इज योर प्राइमरी मेल आईडी, दिस इज एलियास। सो व्हाट यू थिंक अबाउट द एलियास? एलियास क्या होते हैं? एलियास एक नेम होता है, अनदर नेम, डुप्लीकेट नेम। हम्म। हम वो क्रिएट कर लेते हैं कि जैसे मेल आईडी में, जैसे मैं बताऊं तो एक और मेल आईडी बना लेंगे हम उसके ओके। डुप्लीकेट में। जैसे हम उसको दे देंगे अपना, जैसे हमें लगता है कि अननोन पर्सन है, तो अपना हम्म। ओरिजिनल नेम ना बताकर, मतलब ओरिजिनल मेल आईडी ना बताकर उसको डुप्लीकेट नेम बता देंगे, मतलब डुप्लीकेट मेल आईडी बता देंगे। हमें लगता है कि वो अननोन पर्सन है तो वो मेल करेगा तो उस पे जाएगा, पहले आएगा तो मेन पे भी, बट डिलीवर्ड उस पे होगा, और वो उसी पे मेल करता रहेगा। उसको नहीं पता कि ये मतलब डुप्लीकेट इन्होंने और ओरिजिनल बना रखा है, डुप्लीकेट अनदर बना रखा है। तो हमें लगेगा कि अनएक्सेसरी मेल कर रहा है, तो उस अकाउंट को हम एलियास को हटा के और चेंज भी कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं उसको, इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल मेल। Means you don't want to disclose your original information, यस यस। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बहुत से स्पैम मेल्स आती हैं, बहुत से एडवर्टीजमेंट की मेल आती हैं, बहुत से टूल्स हमें डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती है जो कहता है ऑफिशियल मेल आईडी दो आप। गॉट इट? अगर हमें गॉट इट। उस टूल की रिक्वायरमेंट है तो वी आर अनेबल टू शेयर आवर ऑफिशियल मेल आईडी ना, तब एलियस यस क्रिएट यस। करो, एलियस को शेयर करो, उस पे जो मेल आनी है वो आपके प्राइमरी मेल पे आएगी। एलियस पे कोई भी मेल बॉक्स का साइन नहीं होता। एलियस इज अ टेम्परेरी मेल आईडी दैट यू कैन यूज ओनली फॉर द डिस्ट्रीब्यूट दोज पर्सन जो आपको काइंड ऑफ स्पैम या फिर एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड मेल्स को सेंड करते हैं। क्लियर? यस। क्लियर। चलो मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखते हैं। एक एलियस बना देते हैं। AWS हमारा ओरिजिनल प्राइमरी मेल आईडी, करेक्ट? Amazon हमारा एलियस नेम है। तो अभी अपने पास कितने मेल आईडीज हो गई? दो मेल आईडी हो गई। दो मेल आईडीज हैं। एक एक प्राइमरी है, आपकी प्राइमरी मेल आईडी कौन सी है? aws@teachmecloud समथिंग। और इसका एलियस हमने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया? amazon@समथिंग। इसका जो एलियस है amazon@समथिंग। चलो
एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले आउटलुक ओपन कर लेते हैं हम। दूसरा मेल आईडी अपने पास खुला है, ओपन ही है, ठीक है ना। आउटलुक और ओपन ठीक कर है। लेते हैं ताकि हम मेल को सेंड कर पाए। अभी जो हम मेल भेजेंगे ना, जो सेंड करेंगे, आई सेंड द ईमेल टू एलियस। आई डोंट नो अबाउट ओरिजिनल मेल आईडी, इस बंदे की ओरिजिनल आईडी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम इसको ठीक है। एलियस में मेल भेजते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसको ईमेल को रिसीव कर पाते हैं कि नहीं। न्यू हम्म, मेल पे चलते हैं। तो अभी आप ये जो प्राइमरी मेल आईडी उस आईडी से भेज रहे हैं ना? रूट अकाउंट से। रूट अकाउंट से भेज रहे हैं। प्राइमरी रूट अकाउंट जो भी बोलो। एलियस को हमने सेंड किया एंड वेट। अब देखिए, आपके पास एक ईमेल यहाँ पे रिसीव हुई, हम्म, टेस्ट मेल के नाम से। टेस्ट मेल एलियसेस, दिस इज टेस्ट मेल, दिस वन इज अवर रूट अकाउंट। आपको ईमेल तो रिसीव हो रही है, बट इस बंदे को हम्म, ओरिजिनल मेल आईडी के बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता, हाँ। इसने एलियस पे उठा के भेजा और प्राइमरी में आपको रिसीव हो रही है। अब यस, आप यस। ऑनर हैं इस पर्टिकुलर मेल के, तो आप कभी भी इसको रीसेट कर सकते हैं ना। आप एलियस को कभी भी रीसेट कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं इमीडिएटली। इज दैट करेक्ट? आप करेक्ट। यहाँ से क्या कर सकते हो, एलियस को कभी भी रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक किया, डिलीट एलियस। ओके। आप जैसे डिलीट करोगे, बंदे के पास तो आपकी एलियस की डिटेल थी, वो मेल भेजेगा, उसकी मेल अनडिलीवर्ड हो जाएगी हमेशा। ठीक है। तो इफ यू डोंट वांट टू शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है, यू कैन प्रोसीड विद एलियस। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। ये बनाए कैसे कैसे थे सर, यहाँ पे जाकर मेन मेल आईडी पे गए, एडब्ल्यूएस पे गए? एडब्ल्यूएस या किसी यूजर पे जाओगे, हाँ हाँ, अकाउंट में ठीक ही है। है अभी, ठीक है। हाँ हाँ, अकाउंट में। मैनेज अच्छा, यूजर मैंने नेम एंड ईमेल एड्रेस, एलियस के अंदर, दिस इज द एलियस के एलियसेस। अंदर। ओके। यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे नाम दे दो। एडब्ल्यूएस के नाम से बनाया था, आप मल्टीपल हाँ, एलियस बनाओ, कोई तकलीफ नहीं। टेस्ट एडब्ल्यूएस गुड। हमने दे दिया, ठीक है। ठीक इसको है, भी ऐड, ठीक है। आपने दो एलियस बना दिए इसके। एक ही प्राइमरी मेल आईडी के साथ दो एलियस बना दिए। दो एलियस जोड़ दिए, सबको बांट दो अलग अलग। ओरिजिनल सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के लिए रखो, जो कुलीग है उनके लिए रखो, इनको तो आप बाहर के लिए रख लो। आपस में ही क्लियर? मिल के बात करेंगे, कहेंगे सबको अलग अलग मेल आईडी बताता रहता है। हाँ नहीं तो उन लोगों को ऐसे, वो ऐसे बंदों को ना भेजो ना जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। नहीं, मान हम्म? लीजिए दोनों मिल गए आपस में, कहेंगे मेरे को तो ये बताई, तेरे को ये बताई। नहीं, ऐसा नहीं होता। इन इन मेल आईडी का इस्तेमाल किया जाता है जैसे आप साइन अप करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, ठीक है। हम्म, किसी वेबसाइट पे साइन अप करना चाहते हो, ठीक है। उस वेबसाइट के ऑनर थोड़ी ना कोऑर्डिनेट करेगा किसी से। उसको तो मेल आईडी चाहिए, बस आपका ऑफिस का डोमेन चाहिए और मेल आईडी चाहिए, उठा के दे दो, कोई दिक्कत नहीं। उनको मेल आईडी क्यों चाहिए? क्योंकि वो आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भेजेंगे। क्रेडिट कार्ड के जैसे कॉल्स आते हैं ना, नंबर देने के बाद, वैसे इस पे मेल आएंगे, दैट्स इट। ओके। नाउ क्लियर अबाउट एलियस? यस सर। ठीक है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट। ठीक है, नाउ नीड टू प्रोसीड विद अनदर ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, लास्ट साइन इन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यू शुड नो अबाउट कि आपका यूजर कितना एक्टिव है। गॉट इट? गॉट इट। लास्ट साइन इन, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज another important security, sign out, sign out of all sessions. It's a type of you can say that आप रिवोक करना चाहते हैं, ठीक है। यू नो अबाउट द रिवोक? व्हाट इज वापिस रिवोक? आना चाहते, नहीं वापिस नहीं आना, नहीं रिवोक करना, वापिस कम बैक। नहीं नहीं। रिवोक का मतलब है, जैसे ये मैंने ईमेल आईडी लॉगिन कर रखी है, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अपना मेल सेंड कर रहा हूँ, टीम्स वगैरह देख रहा हूँ। एडमिन ने हमारी मेल आईडी पे जा करके, ठीक है ना, एडमिन ने हमारी मेल आईडी पे जा करके उसने ये कर दिया, साइन आउट फ्रॉम ऑल सेशन। ये हमारी ईमेल आईडी रिवोक हो जाएगी, और रिवोक होते ही जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ना, ये मेरा अकाउंट साइन आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक।
अच्छा, इज दैट क्लियर? क्लियर। यहाँ पे अपने पास मेल आईडी है, यहाँ पे आप सब मेल वगैरह रिसीव कर रहे हो। चलिए मैं ना इसको रिवोक कर देता हूँ। यहाँ पे गए और यहाँ पे साइन आउट कर दिया। हम्म, वी हैव इनिशिएटेड साइन आउट फॉर यूजर, मेक श्योर टेक सम टाइम साइन आउट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने इसको पेज को रिफ्रेश किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप देखोगे कि ये मेल आईडी जो है ना ऑटोमेटिक आपकी रिवोक हो गई, साइन आउट हो गई। यू नीड टू प्रोवाइड द यूजर आईडी एंड पासवर्ड अगेन, बट इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब अगर आपको रिबुक करना है तो 15 मिनट पहले आप इसको साइन आउट कर देंगे, तो 5 से 15 मिनट के बीच में आपकी जो मेल आईडी है ना अपने आप लॉग हम्म, आउट हो जाएगी। ठीक है। और ठीक ये है। कब इस्तेमाल करते हैं, ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपको लगता है कोई बंदा पासवर्ड हमारा चुरा रहा है। अच्छा, ठीक है, तो उस केस ठीक में है। हम इसको साइन आउट, अब देखिए अपने आप साइन आउट हो गया। जैसे ही बंदा रिफ्रेश करेगा या कोई टास्क हम्म, परफॉर्म करेगा, वो इमीडिएटली क्या होगा, आपके पूरे अकाउंट को पर्टिकुलर पेज में से रिफ्रेश करते ही वो अपने आपकी पासवर्ड को रिप्लेस कर देगा। मीन्स आपको अगर यूज करना है फिर से पासवर्ड दो, अदरवाइज यू आर नॉट ऑथराइज। जैसे ठीक है। बंदा किसी ने गेस कर लिया पासवर्ड आपका, ठीक है ना, वो हम्म, फटाफट से हम्म, लॉग इन किया, तो हम्म। गेस किया हुआ पासवर्ड ज्यादा देर तक याद नहीं रहता, या तो बंदा लिख ले उसको। ठीक है, यस, यस। तो उस सिक्योरिटी से बचने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचने के लिए हम रिवोक का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर। दिस इज द साइन आउट। अल्टरनेट ईमेल एड्रेस, ग्रुप, रोल्स, मैनेजर और बाकी ये एट्रीब्यूट्स है। ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अभी तक? नो सर। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंट। अभी डिवाइस है, लाइसेंस है, मेल है, ड्राइव है, वन ड्राइव है, इनके बारे में ठीक। तो ये कल डिस्कस कर लिए हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो डन, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, आप इसको सेव कर लेना, बाकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी कल मिलते हैं इसमें। और यूजर सबसे इंपॉर्टेंट है, मीन्स MS 100 में माइक्रोसॉफ्ट की किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए अगर आपको यूजर हैंडल करना आ गया ना, तो आप कोई भी प्रॉब्लम हम्म। सॉल्व कर पाओगे, किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाओगे ऑफिस 365 में। ओके, ओके। चलो और डिस्कस करते हैं कल। वो टेक केयर, वो बाय बना बाय। देंगे क्या अकाउंट एज़ोर पे? अच्छा ठीक है, हम्म। अकाउंट बन गया आपका? नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ अब बना देते, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कैसे क्या बनाना है। अकाउंट आप ऑफिस की मेल आईडी रखो उसमें, ठीक है, नहीं, ऑफिशियल मेल आईडी से साइन अप एज़ोर करो। फ्री ट्रायल अकाउंट तो मैं बना दूंगा। उसके बाद वीएम इंस्टॉल क्या करना है, फिर क्रोम कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब अब पता लगे। अब वीएम क्रिएट कर पाओगे कि नहीं? उसमें वीएम तो क्रिएट हो जाएगा ना? वीएम मशीन तो कर दूंगा क्रिएट, एज़ोर फ्री ट्रायल अकाउंट भी बना दूंगा। हाँ, तो आप वीएम जो क्रिएट करोगे, उस वीएम को क्रिएट करने के बाद कुछ भी नहीं करना, आपको इंटरनेट चलाना है उसमें, हम्म। गूगल क्रोम डाउनलोड करना है। गूगल क्रोम डाउनलोड करने के बाद उसमें जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर लोगे। जो ईमेल अच्छा। जो आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस वाला पेज जो आप अपनी बेस मशीन पे लॉगिन कर रहे हो ना, वो आप वर्चुअल हम्म। मशीन पे परफॉर्म करोगे, सिंपल। नहीं तो वीएम हम जब वहां बना रहे हैं ना, तो सर्वर मशीन बन रही है, सर्वर मशीन पे कैसे इंटरनेट एक्सेस चलेगा, होगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। सर्वर तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। 4 GB की सर्वर सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ओके। तो वहां से फिर क्रोम भी चल जाएगा नॉर्मली ऐसे तो? सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा। ठीक है। ठीक। और ये चलो जो हमने आप, अकाउंट बनाया है ऑफिस 365 में, ये जैसे 1 महीने बाद अपने आप कैंसिल हो जाएगा या फिर क्या, मतलब मैसेज वगैरह आएगा फोन पे? हाँ अपने आप कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। आपका लाइसेंस जो है एंड हो जाएगा ना 1 महीने बाद। ठीक है। ठीक, ऑटोमेटिक हो जाता है ना? ऑटोमेटिक, नो नीड टू डू एनीथिंग। हमने क्रेडिट कार्ड वगैरह तो कुछ लगाया नहीं ना, कोई हेडेक नहीं है हम्म। इसमें। ठीक। चलो ओके। डन, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके, ओके, थैंक यू। ओके।